So guys, today we have gathered here to, to just get out of this very thought process that we cannot learn, okay? So this is a lockdown session going on, I know, but we would make sure that our learning goes the best. So with that, I have come up with this initiative of, just coming up with very good basic session of Python. This is the first session I am creating for Python, the basic one, and I hope you like it. So let's get started. So today I'll be telling you each and everything, like where you can code, why you should code on this IDE, why not on that IDE. So this is something which I'm gonna walk you through today. So let's get started and let's get an idea of some very basic places where we code. So I'll take you through a few things. One would be command prompt, one would be ID named as spider. You might be thinking it is a jargon at present, but calm down. I'll tell you each and everything, why it's required, why not required. Then I'll be, walking you through this very sort of notebook that you can see on the screen, which is called a Jupyter notebook. So don't get, worried. I'll take you through each and every minute detail and would explain you every little tit and bit here. So let's get started. Okay. So, okay. Okay, so guys, we'll be talking about the command prompt now, and I'll show you how it looks. So let's see that. So here it go. So you can probably see black colored window on the screen, right? This sort of window is called a command prompt. So why does it called a command prompt? You might be thinking about that fact, right? So this window asks you, prompts you to give a command. So what sort of command? Any sort of command. So if I want to start a command in Python, I have to just write a very, very simple thing. First of all, I have to say Python. So I have to start writing in Python. So you can probably see an interface would appear. It will ask you to write whatever you want to. Let's print something. Let's print hello. Okay. So you are printing hello and I say enter. So it has taken my command. It prompted me to give a command. I gave a command, print hello, and it printed hello for me. Like that, I say print how are you. So I say print that. It prints for me, how are you? So basically you can probably see this black colored window is nothing but a window of surface which asks you, which prompts you to write a command which it executes, which gives an output to you. So it's a very simple thing. Now what actually happens, guys, you write in this very command prompt, you actually write a lot of code, and once you close this window, everything is gone. There is nothing which is saved for you. So this command prompt doesn't feel to be an option when you want to save the code. So for that we have something called editor. Like you can probably see these sort of notepads you have. You can just take the notepad and save it in py file, or you can save it in, so you have to save it in Python extension so as to run it. So I have saved some of the Python extensions for you. So I will just walk you through how you can do that. You will just write Python, and then the Python notebook that you might have saved. I have just made a notebook called h.py. I just took a notepad, I wrote hello there, and I just saved it with an extension py. So I just said h.py, and now I want to execute that. I'll just say enter, and there was just a command called hello which was written. It has been executed. So you can probably see that if you do not want to use this command prompt for writing code and getting the output, because it will not be saved, you can just do it in notepad, save it, and then execute it here by just a simple line Python, then the name of your notebook. Like I had h.py. Okay. So but the fact all about, guys, what is the problem here? I'll just give you a very short description of what I said. So I said, take some time to open up. So you might be
thinking that if Notepad can do such sort of things, why you were mentioning some words like spider, Jupyter Notebook in the discussion which we started with. So I'll give you a glimpse on that. So, you know, my Notepad is ready and I will share the Notepad with you. So, okay. So here you can see I just wrote this sort of a command, hello, and I asked it to execute it and it did for me. So what you have to do is you have to go to this file, you have to say save as. Whenever you are saving this file, you make sure that instead of txt extension, you should always save it in, like I did h.py, you have to save it in Python extension. So always make sure you save it in Python extension, do not save it in text extension. This is the thing that you have to keep in mind. I have already executed for you, but guys, just try to understand. I said print hello. If you see print is basically a function, something which is executing for me. तो मैंने प्रिंट को बोला कि मेरे लिए हेलो प्रिंट करके लाओ. प्रिंट क्या है? हमारे लिए एक फंक्शन है ना. जब प्रिंट हमारे लिए एक फंक्शन है तो वो, और हेलो हमारे लिए एक इनपुट है. हेलो एक स्ट्रिंग है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे दो अलग चीजें स्क्रीन पर हैं, अगर आप देखने की कोशिश करो तो. एक चीज है प्रिंट और एक है एक स्ट्रिंग जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं. तो हेलो तो एक स्ट्रिंग है, एक इनपुट है जो आपने दे दिया. जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ लेमैन आइडियोलॉजी. लेमैन की लाइंस पे समझते हैं. एक बात बताओ, आप सब लोग ब्रेड को टोस्ट करते होगे, सभी करते होगे, राइट? तो सबको पता है एक टोस्टर होता है. तो टोस्टर क्या होता है? एक मशीन होती है जो आपके लिए कोई काम करती है, तो एक फंक्शन परफॉर्म करती है, और उसके अंदर आप क्या डालते हो? ब्रेड डालते हो. तो ब्रेड क्या होता है? आपका एक इनपुट होता है. तो ये समझो, ये हेलो जो है वो आपका इनपुट है, लाइक द ब्रेड, एंड प्रिंट जो है वो आपका टोस्टर है जो आपके लिए कोई काम कर रहा है. तो ये दो अलग चीजें हैं और दोनों का अलग फंक्शन है. तो ये दोनों अलग कलर्स में होने चाहिए थे. ऐसा होना चाहिए था कि हमें समझ में आए प्रिंट एक फंक्शन है और हेलो एक स्ट्रिंग है. पर ऐसा नहीं दिख रहा ना नोटपैड में. सारे कलर सेम ही दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक. सो ये हमारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करता काम करने के लिए. इसलिए हमारे पास बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं. और आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर कुछ लोग जो आपके, जिनको आप जानते होंगे, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, उन्होंने बोला होगा, ओ आई एम वर्किंग इन पाइथन एंड आई एम वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक, आई एम वर्किंग इन आईडीई कॉल्ड स्पाइडर. ऐसे ऐसे बड़े बड़े जार्गन आप सुनते होंगे. कोई बात नहीं, हम इनको समझेंगे. तो अब मैं आपको ये तो बता, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जब हम नोटपैड पे लिख रहे होते हैं तो सब कुछ ब्लैक में दिख रहा होता है. प्रिंट एक फंक्शन है, हेलो एक इनपुट है जो कि स्ट्रिंग है, वो अलग कलर्स में नहीं दिख रहा. वो हमारे को समझा नहीं रहा मैं क्या हूँ. वो बहुत सिंपल सारा कुछ ब्लैक में दिख रहा है. आपको खुद इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको खुद इतना समझना पड़ेगा कि ये क्या है. पर एक नॉन कोडर देखेगा तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा. तो इस चीज को एलिवेट करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए क्या हुआ कि जो पाइथन की कम्युनिटी है जो डेवलप हो रही है, उन्होंने कहा चलो हम एक आईडीई क्रिएट करते हैं. अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आईडीई क्या होती है. अगर आप कभी भी किसी से सुनोगे जो पाइथन में काम करता होगा, वो कहेगा मैं ना एक आईडीई पे काम करता हूँ. तो जरा समझ लेते हैं क्या होता है. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. गाइस ये क्या है? इंग्लिश में तो आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है ना? ये सोच रहे होगे ना. तो समझते हैं. इंटीग्रेटेड, जो एक एनवायरनमेंट जो बनाया गया है, जो इकट्ठा किया गया है डेवलपमेंट के लिए. अब देखो, आप ऑफिस में जाते हो या फिर आप स्कूल में जाते हो, मतलब कुछ लोग ऑफिस भी जाते हैं. तो जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट उस तरीके का बनाया जाता है ताकि वो काम बहुत अच्छे से कर पाए. अब अगर आप स्कूल जाओ और वहां पे डेस्क ना हो जिसपे आप बैठ करके, आपके पास ब्लैक बोर्ड ना हो जहाँ पे आपकी टीचर लिख करके आपको समझाए, या फिर आपके पास कंप्यूटराइज्ड सेशन ना हो, या फिर आपके पास वो प्रोविजन ना हो जहाँ पे आप बैठ के काम कर सको, एक स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है पढ़ने के लिए, वो नहीं हो, तो क्या होगा? तो आप पढ़ नहीं पाओगे, राइट? उसी तरीके से अगर ऑफिस में कोई बंदा जा रहा है, उसके पास लैपटॉप रखने की जगह नहीं है, डेस्कटॉप रखने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है,
वाटर के लिए वाटर डिस्पेंसर्स नहीं है, कॉफी पीने के लिए नहीं है, मतलब सारे अरेंजमेंट्स नहीं है। अगर आपका सपोज बहुत ज्यादा सर्दी है और एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता जहाँ पे हम काम कर सके। तो ऐसे ही कोड के लिए भी आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको कोड करने में आसानी करे, उसे कहते हैं हम आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, एंड जस्ट सेकंड आई एम शेयरिंग विद यू समथिंग। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक आईडी हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम है स्पाइडर। बड़ा अजीब सा नाम है ना, बट बहुत इफेक्टिव आईडी है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे बड़ी सारी विंडोज हैं। सो दिस इज अ विंडो जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े सारा कोड लिखा है, हम समझेंगे यहाँ क्या लिखा है। और यहाँ पे भी एक विंडो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक विंडो आपको दिखाई दे रही है। तो हम एक एक विंडो को समझने की कोशिश करते हैं। और आपने क्यों कहा कि हम एडिटर में काम नहीं करेंगे, हम स्पाइडर में करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आपको हमारा नोटपैड वाला एग्जाम्पल याद हो, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो लिखा था, राइट। और जो प्रिंट हेलो हमने लिखा था वो ब्लैक कलर में था ना, प्रिंट कुछ अलग था ना, हेलो कुछ अलग कलर में दिख रहा था। पर अगर आप इस आईडीई में देखो, इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में देखो, इसको आईडीई बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। इस एनवायरनमेंट में देखो तो आपको दिख रहा है प्रिंट एक पिंक कलर में है, हेलो जो आपका इनपुट है ये आपका ग्रीन कलर में है। तो ये आपको दिखा पा रहा है कि भाई प्रिंट एक अलग चीज है और जो आपने इनपुट डाला है वो अलग चीज है। तो हर चीज बहुत अलग तरीके से दिख रही है, एंड आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि प्रिंट इज अ फंक्शन। हम ये समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं आगे क्लासेस में, बट प्रिंट एक कुछ अलग चीज है, कुछ अलग काम कर रहा है, और हेलो कुछ अलग है, राइट। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो, ये एनवायरनमेंट आपको एनेबल कर रहा है, आपकी आईज को दिखा रहा है कि दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। सो इट इज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट क्रिएटेड टू मेक यू वर्क, ठीक है। अब गाइज आप ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इम्पोर्ट पैंडास। क्यों लिखा है, क्या लिखा है, इस बात के लिए आपको क्यूरियोसिटी जरूर होगी, पर हम इसको समझेंगे थोड़ी क्लासेस में। पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक एक्सक्लेमेशन का येलो कलर में साइन आ रहा है, उसमें लिखा है कि आपने कुछ इम्पोर्ट किया है पर आपने उसे यूज नहीं किया। सोचो एक सिचुएशन कि आप अपने लिए ब्लैंकेट्स लेकर के आए जब सर्दी थी, और अब क्योंकि गर्मी हो गई है तो आपने उसको उठा के कहीं पे स्टोर करके रख दिया है, ठीक है, अपने बेड्स में डाल के रख दिया। जब दोबारा विंटर आई तो आप भूल ही गए कि आप ब्लैंकेट लेकर के आए थे, है ना। तो आप भूल गए ये बात और आपको लगा कि मुझे फिर से मार्केट जाके ब्लैंकेट लाना है। व्हाट इफ आपके घर में कोई एक ऐसा अलार्म हो या कोई रोबोट हो या कोई ऐसा कुछ हो जो आपको बता दे, या कोई इंडिकेटर हो जो आपको बता दे कि आप ब्लैंकेट ऑलरेडी लाए हुए हो, तो हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही इस एनवायरनमेंट में जब आप कोड कर रहे होते हो तो जो चीजें आपने इधर ऑलरेडी सेव करके रखी होती हो पर यूज नहीं की होती है, उसके लिए यहाँ पे ऐसा एक्सक्लेमेशन का साइन आता है, कहता है कि यू हैव ऑलरेडी इम्पोर्टेड इट। अब इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे, बट वो ऐसा लिख के देता है दिस इज व्हाट यू हैव इम्पोर्टेड, पर आपने इसे यूज नहीं किया, ऐसा टाइप करके वो आपको ऐसे इंडिकेशन देता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको समझना है कि आपको इसे यूज करना है या नहीं करना, आप इसको रिमूव करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो। तो इस टाइप की सिचुएशन में बहुत मदद करता है पाइथन। अब मैं आपको एक छोटी सी और चीज दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर एक क्रॉस सा सिग्नल दिख रहा है आपको। प्रिंट को जब हम हेलो प्रिंट के बाद जब हम पैरेंथेसिस लगा के हेलो लिखते हैं, तो देखो जब इनपुट के लिए हमने एक स्पेस क्रिएट किया था और वो स्पेस हम दो पैरेंथेसिस के बीच में क्लोज कर रहे थे। हमने बोला प्रिंट, हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, हेलो लिखा और एक ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, राइट। अब बाय चांस हमने एक सिंटेक्स एरर कर दिया, हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाना भूल गए, है ना। तो क्या हुआ, ये पाइथन ने एकदम से आपको ये आईडी ने, स्पाइडर जिसका नाम है, इसने आपको एकदम से बता दिया अरे रुको आपने कुछ गलती कर दी है। कोड एनालिसिस उसने दिया और उसने बोला इनवैलिड सिंटेक्स, आपने कुछ इनवैलिड लिखा है, आपने कुछ गलत लिख दिया इस लाइन से पहले। तो आप यहाँ जाओगे, ओ मैं तो एक ब्रैकेट लगाना भूल गया था। तो ऐसे आप जाके उसे करेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि आप कोड लिख रहे हो, इसे बोलते हैं एडिटर,
यहाँ पे आप कोड एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, रिमूव कर सकते हो और फिर रन भी कर सकते हो। रन करने के लिए आपके पास कंट्रोल एंटर रहता है, या फिर आप इससे रन कर सकते हो जो आपको कमांड, सो लास्ट फाइल आप पूरी रन कर सकते हो, आप पूरी की पूरी ये वाली फाइल रन कर सकते हो। तो आप इंस्टेंटली भी कुछ रन करना चाहते हो तो रन कर सकते हो। करंट सिलेक्शन या करंट लाइन आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऊपर जहाँ पे मैंने अपना माउस रखा है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही है रन सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन को रन करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल एंटर भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट एंटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट्स भी हम थोड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी आप इस चीज को समझो कि इसे आईडी क्यों कहते हैं और ये आपके एडिटर से, नोट पैड वाले एडिटर से बेटर क्यों है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, आपने प्रिंट हेलो लिख दिया और आपने इसको रन किया, तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये आप जो देख रहे हो जहाँ पे temp.py लिखा है, ये जो आपका फाइल है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एडिटर बोलते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है जिसके ऊपर लिखा है कंसोल। कंसोल क्या करता है, आपके आउटपुट्स देता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनपुट भी लिख सकते हो, बट जनरली इसे आउटपुट देखने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो इसने आपको प्रिंट हेलो करके दे दिया। अब यहाँ पे आपको 3 और फाइल्स दिख रही हैं, इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो अभी हम जो कोड करेंगे वो सारे जुपिटर नोटबुक में करेंगे, इसके बाद एक और आईडी देखेंगे हम। बट फिर भी हमें जानना है कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हम नोटपैड से स्पाइडर पे आए, फिर स्पाइडर से जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे, इधर के फ्लॉज देखेंगे, तो हम हर एक चीज को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको भी रन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है गाइज, आप लोग तो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे एंड आपको पता होगा वेरिएबल का क्या मतलब होता है। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको समझा देती हूँ। गाइज बहुत रॉकेट साइंस वाली डेफिनेशन अगर हम नहीं भी यूज करें और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यूज करें तो इसको डिवाइड एंड रूल करते हैं। डिवाइड एंड रूल, जस्ट ट्राई टू डिवाइड एंड रूल। तो ये 2 वर्ड से बना है, वेरी एंड एबल। वेरी का मतलब होता है जिसके अंदर वेरी करने की एबिलिटी होती है। तो अगर आपको पता है मैथ्स में हमने x एक वेरिएबल नाम लिया, उसके अंदर पहले 1 फीड किया, उसके बाद मेरा मन किया नहीं 1 नहीं, इसके अंदर 2 फीड कर देते, तो हम x इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। तो वो x जो होता है, जो एक डमी होता है जिसमें हम 1 भी फीड कर सकते हैं, 2 भी फीड करते हैं, उसके पास एबिलिटी होती है वेरी करने की। आप उसके अंदर 1 भी फीड कर सकते हो, 2 भी फीड कर सकते हो। तो वेरिएबल एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसको बहुत सारे लोग बहुत बड़ा जार्गन समझ के डर जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरिएबल कुछ नहीं है। वेरिएबल एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसा डमी, एक ऐसा स्टोरेज, बेसिकली हम कहेंगे एक ऐसी स्टोरेज जिसके अंदर एबिलिटी होती है वेरी करने की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम हमने दिया x और उसके अंदर हमने बोला हम 1 फीड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वेरिएबल एक्सप्लोरर जो होता है ये एक ऐसी विंडो होती है जो हमें बताता है हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या साइज है, वो कैसा है, उसका टाइप क्या है। अब ये टाइप क्या होता है इसके ऊपर हम बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे। डेटा के टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, बहुत सारे होते हैं। बट अभी के लिए इस बात को समझ लेते हैं कि 1 आपको पता होगा, आपने नंबर लाइंस पढ़ी होंगी, और 1 आपका होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, बट यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है एज अ इंटीजर। तो इंटीजर ये स्टोर हो रहा है और आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कि x जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है और उसका टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सप्लोरर आपको सारे आपके वेरिएबल्स बताता है, उसकी वैल्यूज बताता है, उसका टाइप बताता है। देन यू हैव दिस फाइल एक्सप्लोरर। नाउ अब ऐसा भी होता है कभी कभी हमें इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि हमें एक्सेल दिया जाता है, उस पर हमें काम करना होता है, या फिर अगर आप सोचो आपके स्कूल में आपके मार्क्स की एक्सेल बनाते हैं आपके टीचर्स। अब उस एक्सेल को उसके ऊपर हमें कुछ काम करके करना है, सपोज हमें वो फिल्टर्स लगाते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो सब काम हम बहुत इजीली पाइथन में बहुत जल्दी कर सकते हैं। और हमारे पास एक्सेल में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे को कुछ, हमारे पास एक बहुत कंस्ट्रेंट है कि हम इतनी ही रोज ले सकते हैं, अगर इससे ज्यादा लेंगे तो हमारा एक्सेल हैंग करने लग जाएगा। पाइथन में ऐसा नहीं होता, पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल इंटरफेस है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा बड़ा डेटा भी यूज करके उस पर काम कर सकते हो।
तो ये बहुत ज्यादा फायदे हैं पाइथन के। हम फायदे भी बहुत अच्छे से समझेंगे, पर उससे पहले हम ये सारी विंडोज के बारे में समझ रहे हैं। तो इस फाइल एक्सप्लोरर में हमारे पास वो सारी फाइल्स होंगी जो भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे इंपोर्ट करते हैं वो फाइल्स को, कैसे पाइथन में लाते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर एक पूरा हम लेसन समझेंगे, पूरे एक सीरीज लेंगे सेशन की। उससे पहले हमने ये समझ लिया यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स होंगी। अब ये हेल्प क्या करता है। अब सपोज आप देखो हेल्प, अब आपको क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है कि ये प्रिंट काम क्या करता है, ठीक है, और आपको जानना है ये मेरा प्रिंट काम क्या करता है। तो आपने कहा चलो मैं इसकी हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। तो इसने ओके तो गाइज ये पुराना वर्जन है, इसलिए यहाँ पे नो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल दिखा रहा है। बट अदरवाइज क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल आई, दैट इज कंट्रोल इंस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है और वो बताता है कि प्रिंट हेल्प्स अस टू डू दिस थिंग। तो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि प्रिंट हमें क्या हेल्प कर सकता है। सो वो सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो हेल्प आपको अब आप यहाँ पे देखो, आपने एक्सक्लेमेशन लगाया था तो वो आपको बता रहा था दैट इट इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने हेल्प लेने की कोशिश की तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका वेरिएबल आ जाएगा। सो एवरीथिंग इज सो क्लियर इन दिस वेरी एडिटर एंड इन दिस वेरी एक्सप्लोरर्स दैट आपको बहुत ईजी होगा काम करने के लिए। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमने स्टार्ट किया था ना आईडीई। तो इसलिए इसको आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बिकॉज it is very good environment which is created for you to code very easily। आप यहाँ पे बहुत आराम से कोड कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन है जो काम कर रहा है मेरे लिए, ये सारे वेरिएबल्स मेरे लिए क्रिएट हुए हैं, ये मेरे सोल्यूशन है। तो बहुत ही आसानी होगी आपको इधर काम करने में एज कम्पेयर टू द एडिटर, जो नोट पैड हम जिसपे काम कर रहे थे। पर हम ना इंडस्ट्री में और अब लर्निंग में स्कूल्स में भी ये यूज नहीं करते। हम बेसिकली जुपिटर नोटबुक पे ज्यादा ध्यान देते हैं आजकल। और अगर आपके स्कूल में आपको फिर भी कमांड प्रॉम्प्ट्स या फिर कोई आईडीज पे, पाईचार्म और ऐसी आईडीज पे पढ़ाया जा रहा है, दैट्स आल्सो गुड, वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो। बट वन ऑफ द मोस्ट preferred IDs these days by industrialists also is Jupyter notebook। उसको देखते हैं हम और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जब इतना अच्छा हमने स्पाइडर देखा तो हमें क्यों चाहिए ये जुपिटर नोटबुक। इसको समझने की अभी हम कोशिश करेंगे। ओके, सो आई एम गोना शेयर विद यू माय जुपिटर नोटबुक। पहले तो ये जानते हैं गाइस, इसको जुपिटर नोटबुक क्यों कहते हैं। ये नोटबुक क्या क्या मतलब है इस नोटबुक का। सो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, स्कूल्स में हम लोगों के पास नोटबुक होती है, उसमें एक सेल होता है, उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके नीचे हम आंसर लिखते हैं। तो बहुत इजी होता है, एक क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो ये बहुत इजी होता है आंखों के लिए, बहुत इजी टू आईज होता है। अभी हमने स्पाइडर देखा, वहां पे 3 विंडोज थी, एक जगह हम लिख रहे हैं, एक जगह हमारा आउटपुट आ रहा है, एक जगह हमारा वेरिएबल दिख रहा है। तो 3 जगह हमें अपनी आंखें घुमानी पड़ रही हैं और हमें अपने सोल्यूशन दिख रहे हैं। ऐसा इंटरफेस भी हमारे लिए काम करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। हम कोई एक और बेटर इंटरफेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे काम करना बहुत इजी हो जाए। तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, इसे हम जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। अब ये जुपिटर नोटबुक क्या होती है। तो पहली बात मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आइडिया बताती हूँ। जुपिटर, राइट, इसका मतलब क्या है। सो जुपिटर, फिर से हम वही फिलोसफी यूज करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल को इतना आसानी से समझ लिया, ऐसे हम जुपिटर को आसानी से समझते हैं। देखो ये 3 वर्ड से बना है। हैरानी होगी आपको ये जान के कि JU स्टैंड्स फॉर जूलिया। एक लैंग्वेज हमारे बहुत सारे कोडर्स यूज करे करते थे पहले, जिसको कहते हैं जूलिया, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं। PY, दैट स्टैंड्स फॉर पाइथन, जो हम यूज कर रहे हैं आजकल। एंड R स्टैंड्स फॉर अनदर मशीन लर्निंग लैंग्वेज कॉल्ड R, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन, ये जुपिटर जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेजेस यूज लिख सकते हो। इवन अब और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे इंटीग्रेट की जा सकती हैं विद अ स्मॉल लाइन ऑफ कोड। तो ये इन तीनों से मिलकर बना है, इन तीनों की इंस्पिरेशन से ये आईडी बनी है। JU stands for your Julia, PY stands for Python and R stands for your R language। ये बहुत बहुत इंटेंसिव लैंग्वेजेस थी जो हमारे मशीन लर्निंग वाले लोग और डेटा साइंस वाले लोग यूज करते हैं। आई एम माई सेल्फ अ डेटा साइंटिस्ट एंड आई यूज जुपिटर नोटबुक्स एंड जुपिटर लैब्स। सो
वो यूज करते हैं, और ये नोटबुक जुपिटर नोटबुक वाला जो इंटरफेस है ये उससे इंस्पायर होके बना है, ठीक है। सो अब आप ये देखो, आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर, कि यहाँ पर एक सेल है जहाँ पे आपने अपना वो इनपुट डाला, जो एडिटर में आप लिख रहे थे प्रिंट हेलो आपने डाला, और उसी के नीचे आप उसका आउटपुट देख पा रहे हो। तो आपको दो दो विंडोज में अपनी आईज घुमाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बहुत ही इजी गोइंग आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात समझते हैं, ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम सेल बोलते हैं। इसमें आप अपना इनपुट लिखते हो और उसका आउटपुट नीचे लिखा हुआ आ जाता है। सो व्हाट यू आर राइटिंग इज योर इनपुट। सो ये सेल, इस सेल को बोलते हैं हम इनपुट। आप इसके आगे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन आपका बेसिकली बता रहा है इनपुट, एंड उसी के नीचे जो आपका आंसर आएगा उसे हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। सो हम आज एक बहुत ही सिंपल सी कमांड करेंगे, और उसके बाद वील बी स्टॉपिंग एंड वील बी टेकिंग दिस वेरी सेशन यू नो द नेक्स्ट टाइम। सो यू नो आज हम एक बहुत सिंपल सी कमांड पढ़ेंगे जिसे प्रिंट हेलो बोलते हैं, और उसको कंपेयर करेंगे एक और कमांड के साथ जिसमें मैंने सिर्फ हेलो लिखा है। हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत सारे लोगों को इस डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता है। अब इसको समझना, आई सेड प्रिंट हेलो, ठीक है। मैंने ये कमांड दिया और मैंने इसको रन कर दिया। देखो यहाँ पे एक रन का कमांड, यहाँ पे एक रन का सेल बटन बना हुआ है, इसको आपको दबाना है और आपका रन हो जाएगा कमांड। इट्स वेरी सिंपल, राइट, जैसे हमने स्पाइडर में देखा था। और मैंने इसके नीचे एक और कमांड लिखी, सिर्फ हेलो, और मैंने इसे रन कर दिया और ये रन हो गया, राइट। तो आपको क्या दिख रहा है? जब मैंने प्रिंट हेलो लिखा तब भी आपको हेलो लिखा हुआ दिखा, जब मैंने सिर्फ हेलो लिखा तब भी हेलो को लिखा हुआ दिखा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा, सोच रहे हो ना? ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ। ये ऑब्जर्वेशन देखी होगी आपने, अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो अब तो कर ही ली होगी। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट यू माइट हैव मेड। इफ यस, वेरी गुड, बिंगो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस प्रिंट और इस हेलो में क्या डिफरेंस है? अगर ये बेटर है और ये आउटपुट दे रहा है हेलो ऐसे वाला ही, तो ये प्रिंट एक और वर्ड लगा के इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? सो गाइस, ये जो प्रिंट हम लिखते हैं, प्रिंट का मतलब होता है कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट जो हम ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, इसको हमें प्रिंट करना है। अब प्रिंट का मतलब ये होता है कि हम उसका ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है। तो ब्लूप्रिंट मतलब वो कैसा दिखता है। हेलो हमने इनपुट डाला, वो कैसा दिखता है, सो उसने दिखा दिया ये ऐसा दिखता है, हेलो जैसा दिखता है। अब इसका एक कांस्टेंट है, अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, से हमने वर्ल्ड ऐड कर दिया, ठीक है, मुझे इसमें वर्ल्ड ऐड करना था प्रिंट हेलो में, तो मैंने इसको बोल दिया, इसने मैंने इसको बोला कि प्लीज इसमें वर्ल्ड ऐड कर दो, ये जो प्रिंट आपने लिखा है ना इसमें वर्ल्ड ऐड कर दो। तो इसने मुझे बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, इसकी गहराई में हम बाद में जाएंगे, बट देखो प्रिंट आपका एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब ये कैसा दिखता है इसने आपको बता दिया, पर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है जो आपको दिखाता है जो आपने इनपुट डाला है वो कैसा दिखता है, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। पर अगर आप ये हेलो की बात करो, जो हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, इसमें अगर मैं वर्ड ऐड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस यहाँ डाल देते हैं। ओ वाओ, ये तो हो गया। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया, वो आपको इनपुट तो प्रिंट करके दे देगा, कैसा दिखता है वो दे देगा, पर आप इसे मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको मैन्युपुलेट करना है तो पहले मैन्युपुलेट कर लो, फिर प्रिंट देख लो। तो अगर आपको मैन्युपुलेट करना है तो आपके पास वो आउटपुट हैंड में होना चाहिए। हेलो अगर आपने देखा, दिस इज योर इनपुट, और इसको अगर आपको चेंज करना है, उसके अंदर कुछ ऐड करना है या फिर उसमें से कुछ हटाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये स्ट्रिंग में आपको कुछ ऐड करने के लिए सिर्फ एक प्लस लिखना था, पर आप ये सेम चीज यहाँ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रिंट आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट दे रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं आपको एक लेमैन एग्जाम्पल में समझाती हूँ। सोचो कि आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आपके सामने एक बिल्डिंग है और आप उसके ऊपर एक और फ्लोर बनवाना चाहते हो, तो आप बोलोगे आप बोलोगे कि प्लीज इसके ऊपर एक फ्लोर बना दो, एंड फ्लोर बन जाएगा, राइट, क्योंकि आपके पास सामने वो बिल्डिंग है और आप उसके ऊपर एक फ्लोर बनवा सकते हो। दैट्स वेरी इजी फॉर यू।
what if आप यूएस में बैठे हो और आपका you have a flat in Delhi, and you know the person who works for you, who creates another floor for you for your house, वो आपके साथ ही घूमता है, ठीक है, वो आपके साथ ही रहता है हमेशा, ठीक है, तो वो तो आपके साथ है, आपने उसे बोला कि फ्लोर बना दो, तो क्या वो बना देगा फ्लोर? नहीं, राइट। पर आप उस जो घर है उसको ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो, अगर आपके हाथ में उसका पेपर है जिसपे वो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जो घर दिख रहा है जैसे आपका घर है, वो आपने एक पेपर पे बना रखा है, ठीक है। तो अगर आप उसको देख रहे हो और आप कहते हो कि मेरा घर ऐसा दिखता है, आप किसी को दिखा रहे हो मेरा घर ऐसा दिखता है, तो आपने उसको दिखा दिया, आपने कहा इसके ऊपर एक और फ्लोर बना दो, तो क्या आप पेपर पे फ्लोर बना दोगे? नहीं बना सकते। तो पेपर पे जो उसका प्रिंट है उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, उस प्रिंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर अगर हमारे हाथ में आउटपुट हो, अगर हमारे सामने वो बिल्डिंग हो, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो आउटपुट और प्रिंट में यही फर्क है, प्रिंट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, जो कि आपके पेपर में होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको जब तक वो आपके हाथ में ना हो। तो जैसे बिल्डिंग पेपर पे जब थी तो आप उसके ऊपर एक और फ्लोर नहीं बना सकते थे, पर अगर आपके सामने बिल्डिंग है तो आप उसके ऊपर एक फ्लोर बनवा सकते हो। तो आउटपुट इज समथिंग विच यू कैन मैनिपुलेट, प्रिंट इज समथिंग विच गिव यू द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल दैट. So this is the difference, guys. This is also not known to a lot of people. It's a very cute and a very nice concept. So do understand this. It is a beginning for you. You are learning the basics. तो अपने बेसिक्स को इतना फर्म रखो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. So with that, I'm signing off for today, and we'll be coming back with a new session. And I would be really happy if you liked the session. Please like, subscribe, and share this. And also make sure that give your feedback. That's very important for me to move forward and bring up something new and more compatible to you, that can bring you a best learning. So signing off for today, guys. We'll meet soon.